It is the third part of revision from the chapter The Story of Village Palanpur. And in this video we will take the revision of the Will the Land Sustain. In our first part we have seen the introduction as well as the short story of the village Palanpur ki dekhe the ki it is a well connected village, all facilities are there. Then we have seen the factors of production, means organization of production. The four factors are very important: land, labor, physical capital and the human capital. And among them we have seen the land, some topic of land. उसमें से कुछ topic land के पढ़े थे. Just like a land is a fixed, means it's included in a fixed capital. We can't create it, made it, हम उसे बना नहीं सकते हैं. इसलिए land कैसी fixed capital है. It is a limited. It is not unlimited. It is a limited. Then second हमने देखा था कि multiple cropping. Means what is a multiple cropping? When we grow more than one crop in a same piece of land during the year, that is called multiple cropping. Means same land में हम different variety के क्या लेते हैं, crop लेते हैं, तो उसे कहा जाता है multiple cropping. After that we have seen the modern farming, and modern farming there is the importance of the HYV seeds, means green revolution, which was held in the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and with the help of the modern farming or with the help of the HYV seeds they increase their production बढ़ाया था उन्होंने with the help of modern farming. ये हमने देखा. Then now we will see the will the land sustain, means land क्या कंटिन्यू चलने वाली है, land हमें कंटिन्यूस उसकी जो फर्टिलाइजिटी बरकरार रहने वाली है. तो ये सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे. बट बिफोर गोइंग टू टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू explain you question which is related to our previous part as well as today's part. So here is one question that is state any four features of land as a factor of production. State any four features of land. अब यहाँ पे factors of production में land is important. अब land के four features बताना है आपको ये भी आ सकता है कि state any four features of labor as a factor of production. State any four features of physical capital as a factor of production. State any four features of human capital as a factors of production. For 3 marks. तो land का four features पता है, तो already I have told you land is a fixed of production. Land is a fixed capital. It is a fixed of production. Then it is a free gift of nature. We say that land is a natural resource and it is gifted by a nature. Nature ने गिफ्ट दिया गया है कि गिफ्ट हमें फ्री नेचर से मिला है, बट हमें इसका मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि बार बार आपको बताया जा रहा है और आपको भी पता है कि हम वी कांट मेड लैंड, हम लैंड को नहीं बना सकते, या हमें लग रहा है कि हमारे पास कम लैंड है तो हम कहीं और से बोरो करके भी नहीं ला सकते. तो इसीलिए it is a free gift of nature, but we use it carefully. Then land being a natural resource, you know that land is a natural resource and it is necessary to be very careful in its use. इसलिए बहुत जरूरी है कि we use it carefully, and because once destroyed it is very difficult to restore it. अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गई तो इसे रिस्टोर करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्या, इसे हम इम्पॉसिबल ही कहेंगे कि हम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते. जबकि कहा है कि ये कैसी है, नेचर, इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचर से हमें फ्री गिफ्ट मिला है और इसीलिए हम इसे रिस्टोर नहीं कर सकते. अगर लैंड ह्यूमन मेड रिसोर्स होती तो हम उसे रिस्टोर कर सकते थे. सो द लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुली इन इट्स यूज, because once destroyed it is very difficult to restore it. Then last is production from the same piece of land can be increased by using various modern techniques. हम अगर बहुत से modern techniques को यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेम piece of land में अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स ले सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ पे ये 4 फीचर्स बताए गए हैं कि land is a fixed of production, it is a free gift of nature, land being a natural resource, it is necessary to be very careful in its use because once destroyed it is very difficult to restore it.
and last is production from the same piece of land can be increased by using various modern techniques. Okay. फिर उसके बाद हमने will the land sustain, land being a natural resource, it is a necessary to be carefully in its use, because when destroyed it is very difficult to restore it. हमने कहा कि ये नेचुरल रिसोर्स है, बट एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद हम इसे रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, और हमने क्या किया है, मॉडर्न टेक्निक को यूज कर रहा है. वी आर यूजिंग मॉडर्न टेक्निक एंड इट इज वेरी डेंजर फॉर द लैंड. लैंड के लिए क्या है, बहुत डेंजर है. हमने देखा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दे आर डूइंग देयर फार्मिंग with the HYV seeds, and HYV seeds needs so much fertilizer, so much chemicals, so much irrigation, and that time it is danger for our earth, because the ground water level decrease day by day. The ground water level क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, as well as land की fertility क्या हो रही है, reduce हो रही है with the use of the chemicals. chemicals के use से land की fertility भी reduce हो रही है, तो इसीलिए हमें इसका use केयरफुली करना है. और सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड आर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, और इसलिए बताया गया कि इसे रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट. इसलिए मैंने कहा कि ये पॉइंट्स आपके प्रीवियस टॉपिक से भी रिलेटेड है और ये टॉपिक्स में भी रिलेटेड है. विल द लैंड सिस्टम में यही बताया गया कि ये नेचुरल गिफ्ट है, बट हमें इसे नेसेसरी केयरफुली यूज करना है. एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गई तो हम इसे रिस्टोर नहीं कर सकते हैं. और प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्निक. मॉडर्न टेक्निक्स तो ठीक है, बट वी आर यूजिंग ट्रैक्टर, हम ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है. देन हम बहुत से केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, इरिगेशन का यूज कर रहे हैं, वाटर लेवल कम जा रहा है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है मॉडर्न फार्मिंग के वजह से. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसलिए हमें इसको क्या करना है, अच्छे से यूज करना है. देखिए यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग का बताया गया है, किस किस का यूज किया जा रहा है मॉडर्न फार्मिंग में. फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है, केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, वाटर पंप का यूज किया जा रहा है इरिगेशन सिस्टम के लिए. फिर आप इधर साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मशीनरी, फॉर्म, डीजल, मीन्स इतना सारा इसमें इन्वेस्टमेंट हमें मॉडर्न फार्मिंग में लग रहा है. ओके. फिर उसके साथ आप देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर. हर साल कल्टिवेटेड एरिया क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट लैंड क्या हो रही है, लैंड को हमने बताया कि फिक्स्ड है, और हम क्या कर रहे हैं, कल्टिवेटेड एरिया हम बढ़ाते जा रहे हैं. तो कुछ समय ऐसा आएगा कि हमारे पास बिल्कुल भी लैंड नहीं रहेगी. ओके. फिर यहाँ पे बताया गया है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर. ये हमारा 4th टॉपिक होगा. Okay, see how is land distributed between the farmers of Palampur. Means Palampur के farmers के बीच में land जो distribution था वो है, वो कैसा है. It is a unequal distribution. It is not a equal distribution. ये कैसा unequal distribution है, equal distribution नहीं है. जो पालमपुर के किसान हैं उनके बीच में जो land का distribution है वो equal नहीं है. कैसा है, अनइक्वल है. तो इसे हम अपने टॉपिक को भी समझ लेते हैं, उसके साथ हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो आपको इस टॉपिक पे किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा. तो डिस्क्राइब द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. डिस्क्राइब द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. मींस पालमपुर में जो फार्मर्स है उनके बीच में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो कैसा किया गया है वो आपको डिस्क्राइब करना है. यू मस्ट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग. आपको पता है कि लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग और अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. अगर आपको अदर एक्टिविटीज भी करना है ऑन अर्थ दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. मीन्स अगर लोग बिजी भी एग्रीकल्चर में बट दे हैवंट सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. उनके पास सफिशिएंट लैंड
नहीं है कल्टीवेशन के लिए, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो कैसा किया गया है? इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। हमने देखा था कि 450 फैमिलीज आर लिविंग इन पालमपुर। 450 फैमिली कहाँ रह रही है? पालमपुर में रह रही है। अब इन 450 फैमिली में से सिर्फ 1/3 फैमिली कैसी है? लैंडलेस है, मीन्स दे हैवंट एनी लैंड, उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। 450 फैमिलीज में से 1/3 फैमिलीज के पास लैंड नहीं है, दे आर लैंडलेस। ओके, देन सेकंड इज ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लेस देन 2 हेक्टर्स। अब बचे हुए जो 450 में से तो 1/3 हमने देखा कि लैंडलेस है, फिर जो बचे रिमेनिंग जो है उनमें से 450 फैमिलीज कल्टीवेट कर रही है, बट कैसे प्लॉट्स में कल्टीवेट कर रही है? स्मॉल प्लॉट्स में। कैसे प्लॉट्स में? स्मॉल प्लॉट्स लेस देन 2 हेक्टर्स, फिर 2 हेक्टर से भी कम है, ऐसे लोग उसमें खेती कर रहे हैं। एक तो 1/3 के पास खेती ही नहीं है। अब कुछ फैमिली ऐसी 440 फैमिलीज कि जिनके पास कल्टीवेशन के लैंड है, बट इट इज वेरी स्मॉल प्लॉट्स एंड इट्स लेस देन 2 हेक्टर्स। 2 हेक्टर से भी कम खेती उनके पास है। ये हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चंस भी बन रहा है, साथ ही साथ हमारा वो टॉपिक भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ओके, देन ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज। अब क्या हो रहा है? वो ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखोगे आप तो मोर देन हाफ ऑफ द एरिया मीन्स हाफ एरिया से भी, मोर देन हाफ एरिया मीन्स हाफ एरिया से भी ज्यादा वो विलेज का एरिया किससे कवर किया गया है? प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज मीन्स कुछ छोटे एकदम, पहले तो स्मॉल प्लॉट्स थे, फिर उससे थोड़े बड़े, ऐसे कितना एरिया में? मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज मीन्स विलेज का हाफ एरिया जो है, हाफ एरिया से भी थोड़ा ज्यादा एरिया, उसमें आपको किस टाइप का लैंड देखने को मिलेगी? क्वाइट लार्ज। ओके, देन 60 फैमिलीज ऑफ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट लैंड ऑफ मोर देन 2 हेक्टर मीन्स 60 फैमिलीज जो है वो किसमें आती है? मीडियम फार्मर्स में भी आती है और लार्ज फार्मर्स में भी आती है, जिनके पास कितनी है? मोर देन 2 हेक्टर्स मीन्स 2 हेक्टर से ज्यादा है, थोड़ा बहुत ज्यादा लैंड है। कितनी फैमिली? 60 फैमिलीज के पास जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स में आते हैं, तो दे हैव मोर देन 2 हेक्टर्स, 2 हेक्टर से थोड़ा ज्यादा प्लॉट है उनके पास। देन अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर। एकदम कुछ ही ऐसे फार्मर्स हैं कि जिनके पास 10 हेक्टर्स, 10 हेक्टर्स या उससे ज्यादा जमीन है, लैंड है। मीन्स ये कहीं पे भी आपको इक्वालिटी दिख रही है डिस्ट्रीब्यूशन में? हियर इज नो इक्वालिटी, हियर वी विल सी ओनली इनइक्वालिटी। यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी ही देखने को मिल रही है कि कहीं पे भी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं किया गया है। तो आप पिक्चर में देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि कुछ किसान है 1/3 फार्मर्स जिनके पास खेती नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्मॉल प्लॉट्स, एकदम छोटे छोटे प्लॉट्स दिख रहे हैं, तो ये हैं ये स्मॉल प्लॉट्स। 240 फैमिलीज के पास स्मॉल प्लॉट्स है। देन अगर आधे से ज्यादा विलेज का जो एरिया है कवर्ड बाय क्वाइट लार्ज मीन्स थोड़ा बड़ा है, देखिए क्वाइट लार्ज दिख रहे हैं, इससे बड़े ये जो दिख रहा है आपको क्वाइट लार्ज, ये छोटे से थोड़ा बड़ा है, वो आप विलेज पालमपुर का आधे से ज्यादा हिस्सा आपको कवर किया गया मिलेगा। देन 60 फैमिलीज जो है वो मीडियम या लार्ज फार्मर, जो 60 फैमिलीज जो आपको मीडियम या लार्ज फार्मर देखने को मिलेंगे, और कुछ ही ऐसे फ्यू लोग हैं जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन आपको देखने को मिलेगी, जो बड़े प्लॉट दिख रहा है यहाँ पे प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, छोटे छोटे प्लॉट, फिर थोड़े बड़े, कुछ 2 हेक्टर के, कोई 2 हेक्टर से ज्यादा बड़े, इस टाइप के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का आपको देखने को मिलेगा विलेज पालमपुर में। तो ये जो टॉपिक है हमारा, हमने टॉपिक भी देख लिया, उसके साथ हमने क्वेश्चन भी कवर कर लिया। प्लीज राइट द क्वेश्चन आंसर। और फिर ये देखिए यहाँ पे बताया गया ट्रेडिशनल फार्मिंग की गई है, बुलक कार्ट से फार्मिंग की जा रही है, मीन्स बुआई की जा रही है, जोताई की जा रही है,
किससे की जा रही है, ट्रेडिशनल तरीके से। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम दैट टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट मॉडर्न फार्मिंग। आपको क्या करना है, मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना है, तभी आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने मॉडर्न फार्मिंग के ड्रॉबैक्स भी देखे कि किस टाइप से ड्रॉबैक्स हमें मॉडर्न फार्मिंग के देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने हमारा जो टॉपिक है वो कवर किया है। इसके पहले हमने देखा कि लैंड के बारे में देखा। तो लैंड का जो टॉपिक है, जो फर्स्ट फैक्टर्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फर्स्ट फैक्टर जो है लैंड, इट इज कंप्लीटेड। क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लैंड में हमने देखा कि लैंड इज फिक्स्ड। देन हमने ये भी देखा मल्टीपल क्रॉपिंग देयर, देन मॉडर्न फार्मिंग देयर। फिर हमने बिल्ड द लैंड सस्टेन भी देखा, और उसके बाद हमने देखा हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट्स नहीं। स्टोरी जैसा आप पढ़ोगे, देखिए इसमें आपको स्टोरी भी दी गई है कि किस टाइप से डिस्कशन करते हैं, जो फार्मर्स है वो डिस्कशन करते हैं। वो आपके लेबर वाले टॉपिक में आएगा जो हम पढ़ेंगे इसके आगे। जो सेकंड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, सेकंड फैक्टर क्या था प्रोडक्शन का, लेबर, जो हम हमारे सेकंड टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस topic. Then we will meet to our next video with our new subtopic, that is the labor. Thank you very much and bye bye.